Hello students, how are you? I hope you all are fine. Yes, this is a difficult situation for us because of COVID-19, but we will definitely overcome by taking good precaution. And I hope you all are taking good precautions. So, and I also congratulate to class 9th students also to qualify for class 10th. And from today we will start a class for class 10th, and I am taking topic polynomials. I am taking this topic because we have studied this topic in class 9th also, so it is easy to understand. Uh, that is why I am taking this. And before I start this, we should know what is the use of this topic and why it is included in our NCERT syllabus. So students, when we solve questions related to ages, question related to time and distance, there we saw some questions in which polynomials occur. So we have to know, to solve that question, what is the properties and what is the characteristics of polynomials. So this is the use of polynomial which we see in applications part also. So what is polynomial? So polynomial is actually a special type of algebraic expression. And what is algebraic expression? So algebraic expression is something like 3x squared. We have seen this type of expressions: 5x plus 2, 3x squared minus 2. So these are algebraic expression, but polynomials is a special type of algebraic expression. So what is polynomial? The actual definition of the polynomial is if x is a variable and n is an integer and a1 a2 a3 an are constants then fx is equals to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus a0 is called a polynomial. Invariable x. So this is the actually definition of polynomials. It means if x is a variable and n is an integer and a1 a2 a3 and so on an are constants, then fx, we represent polynomial by this: fx is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the n minus 1 plus plus a0. a0 is called a polynomial invariable x. Let's take example. Two x squared plus 5x minus 8. It is a polynomial because it is in the form of an xn plus an minus 1 x to the power n minus 1. हम देख सकते हैं कि पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. पहले x की पावर 2 थी, फिर 1 हुई और फिर इस पार्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये एक पॉलिनोमियल है. लाइकवाइज 3x क्यूब minus 2x square plus 7x minus 3 is also a polynomial. But we should know some other algebraic expression which are not polynomials. So those expressions are 2 root x plus 5, 2x to the power 2 by 3, 5x to the power minus 2, 1 upon 3x cube. कुछ शोर आ सकता है बाहर से, बट हमको फोकस करना है किस पे, अपनी स्टडीज पे. ठीक है. सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इनके जो x के वेरिएबल की पावर वो होल नंबर नहीं है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर कौन से? होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो होल नंबर इट मींस कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ना तो कभी नेगेटिव होगी और ना ही कभी फ्रैक्शन में होगी, ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। सो 2x + 5, 2x to the power 2/3, 5x to the power -2। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रूट x को x to the power 1/2 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर क्या है? फ्रैक्शन में। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Likewise, this is also not a polynomial because the exponent of x is 2/3, not a whole number. 5x to the power -2 here, it is not fraction, but the exponent is negative. So this is also not polynomial. In this case, 1/3x cube, we can write 1/3x cube as 1/3 x to the power -3. So here also the exponent is negative, so this is also not polynomial. But √2x square plus 7x minus 3 is polynomial. Here comes root, but root is on constant. It means it is on 2. So the exponents of variable are whole numbers. So this is, we can say, polynomial. So now we will also revise the class 9th concept so that we can easily understand the class 10th concept. So here we see types of polynomial. So we can classify the polynomial on two bases. The first is degree of polynomial, and the second one is terms. On the basis of terms, we classify the polynomials. So these are the two bases on which we classify the polynomials. So first we saw degree. So what is degree of a polynomial? So let's see some example. If I write 5x cube plus 2x square minus 3x plus 8, and I write x to the power 7 minus 2x cube, and if I write 3x square minus 7x plus 7, and if I write 2x square, this is question number 1, 2 and 3, this is 4, 5, the fifth question is, we can say, 7, and the sixth question is 0. So we have to find what is the degree of this polynomial. So degree of the polynomial is the largest exponent of the polynomials. So in first question we can see that the exponent 3 is largest in this question. ध्यान रखिएगा, हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? बाहर की आवाजों पे अभी फोकस करिएगा, इसी पे। ये आवाजें आती रहेंगी ऐसी थोड़ी बहुत। So 5x cube plus 2x square minus 3x plus 8, इसमें हम देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है? 3, बिकॉज लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 3. इन दिस केस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर है वो है 2. In this case, the largest exponent is 7. So the degree of this polynomial is 7. In this case, the degree of the polynomial is 2. And here, it is also a polynomial. Actually, we can write 7 as 7x to the power 0. So here the degree of the polynomial is 7 is 0. And we can also set this polynomial as constant polynomial. So now the sixth, so degree of the polynomial 0, it is called 0 polynomial. So it is a special type.
of polynomial because the degree of this polynomial is not defined. We don't know what is the degree of this polynomial. So here the degree is 3, here the degree is 2, here the degree is 7, here the degree is 2, 7, the degree is 0, and the 0 has no degree. The degree is undefined. Okay? So we will learn some more about degree of polynomials. So polynomial with degree 1, we can say two x plus 3 is called linear polynomial. Linear polynomial. The form of this polynomial is ax plus b, where a is not equal to 0. इसका मतलब क्या है? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी उनको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. इनकी जो फॉर्म होती है वो ऐसी होती है ax प्लस बी, जिसमें a0 नहीं हो सकता है. a0 क्यों नहीं हो सकता है? a0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हमने 0, मान लीजिए 0 इंटू एक्स प्लस 5 लिखा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? 5. और अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है. ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. तो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. सो likewise polynomial with degree 2, 2x square plus 7x minus 3, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और इसकी जो फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a does not equal to 0. मीन्स इसमें b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. ठीक है? अब इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 3 होती है, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8. ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में. क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a does not equal to 0 for same reason. ठीक है? अब polynomial with degree 4 means 2x to the power 4, 2x to the power 4 minus 3x square plus 7x plus 8, ये ऐसे हो सकते हैं. और इनको हम लोग कहते हैं बाय quadratic polynomial. So यहां इनकी फॉर्म हो जाएगी ax to the power 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. सो ये होती है कि जनरल फॉर्म. एक्चुअली यहां मैं लिख रहा हूं जनरल फॉर्म. ठीक है? ये है एग्जाम्पल और ये है इनके नेम. ठीक है? सो ये लीनियर, जिनकी डिग्री 1 उनको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री है 2 इनको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 3 इनको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 4 इनको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
तो अब क्वेश्चन है कि अगर डिग्री 4 से भी ज्यादा होगी तो फिर क्या है, हम उसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने लिखा 3x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 5। तो इसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, इसको हम लोग क्या सिंपली नाम देंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, ये नाम है। तो ये जो हम लोगों ने स्टडी किया ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें उन्होंने देखा था दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, पहला डिग्री और दूसरा है टर्म्स। तो ये जो हम लोगों ने पूरा देखा ये किस बेसिस पे, ये डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल्स को। सो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम इंट्रो पार्ट ही कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे जिसको उन्होंने क्लास 9th में पहले से पढ़ा हुआ है, बट एक बार रिवाइज करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। सो टर्म्स के बेसिस पे हमको देखना है। सो आई होप कि आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 9th में। सो दिस इज 2x, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ओनली विथ वन टर्म। सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, बाइनोमियल। आई होप आपको दिख रहा होगा, इट इज बाइनोमियल। पॉलिनोमियल विथ थ्री टर्म्स, 3x square plus 7x minus 2, it is called trinomial. So this is the classification on the basis of their terms. So one term monomial, two term binomial, three term trinomials. Okay, so now we study what is the value of the polynomial, and before that आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत इजी है। कोफिशिएंट, तो अगर मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, और अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है, तो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा -7। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट -7। अब मान लीजिए मैंने लिखा है -x स्क्वायर -3x प्लस 9, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, यहां अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम लोग कंसीडर करेंगे 1। सो दिस इज -1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1 और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3। मैंने बता दिया इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कुछ ना कुछ। सो अब हम लोग आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, आई नो आप लोगों को पता है, f2 हम लोग यहाँ पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3, so this will be 2 into 4 plus 10 minus 3, so 8 plus 10 minus 3, 18 minus 3, so this will be 50. So value of polynomial fx 2x square plus 5x minus 3 will be equal to 15 at x is equals to 2. And let's take some more example to understand this.
So find the value of polynomial fx 3x square minus 6x plus 4 at x is equals to -1/2। अब जब -1/2 आता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये क्या आ गया, बट वेरी सिंपल, हमको बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सो 3 -1/2 स्क्वायर माइनस 6 -1/2, बस हमको जहां जहां x है वहां वहां x की जगह पे -1/2 रिप्लेस कर देना। सो 3 -1/2 का स्क्वायर, बिकॉज पावर क्या है, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 1/4 माइनस 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 प्लस 6/2 plus 4, so we can write it as 3/4 plus, it will cancel out, 3 plus 4, this will be equal to 3/4 plus 3 plus 4 7, and this will be equal to 3 plus 28, we will take LCM 4, and this will be 31/4. So value of the polynomial 3x square minus 6x plus 4 at x is equals to -1/2 is 31/4। एक और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट का। सपोज कि अगर यहां पे x की जगह पे होता -1/2√2, तो अभी भी ये क्वेश्चन उतना ही सिंपल है, बस हमको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। So 3 minus 1/2√2 whole square minus 6 minus 1/2√2 plus 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होती है, तो जरा देखिए ये कैसे होगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 8। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 6/2√2 plus 4, so this will be 3/8, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 3 चांस में, so plus 3/√2 and plus 4। तो अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 8। ध्यान से देखिएगा, अब यहां से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ध्यान से, एलसीएम आएगा 8। अब 8 को कितने चांस में, 1 चांस में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, अब √2 से डिवाइड करेंगे 8 को। अब बहुत से लोगों को यहां पर लगेगा ये कैसे होगा, तो जरा देखिए कैसे होगा, 8/√2, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 into 2 लिख सकते हैं। ये बस समझाने के लिए, ये कॉपी में यहाँ पे नहीं करना है, ये बस रफ है आपको समझाने के लिए। और आपको पता है कि 4 into ये जो 2 है इसको हम लोग इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, √2 into √2 और अपॉन √2। इस 2 को मैंने 2 √2 में स्प्लिट कर दिया है, तो √2 से √2 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा 4√2। तो जरा देखिए, √2 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4√2, और 4√2 जो डिवाइड करने पे आएगा क्वोशिएंट, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो 4 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12√2, और ये इसके अपॉन में 1, तो ये तो 8 चांस में जाएगा, और 8 4 जा 32, so 32 plus 3 35 plus 12√2/8। अब ये ऐड नहीं होने वाला, कुछ गणितज्ञ इसको भी ऐड कर देते हैं 35 plus 12 को, बट ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इरेशनल है, ठीक है, तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा 35 plus 12√2/8। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये स्क्वायर रूट वाले जहां क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होने लगती है, तो इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अब हमने देखा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, नाउ वी विल सी zeros of polynomials। आई विल से अगेन दैट इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो जरा देखिए, बट रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे एक बार।
zeros of polynomial. अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, इजी है वो। तो सर देखिए, इफ fx is equals to x square minus 5 x plus 6, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो है, वो x की वो वैल्यू है, वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको अगर इसमें पुट कर दें तो fx की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो जरा देखिए, अगर हम लोग पुट करें इसमें x is equals to 3, तो देखिए क्या होता है। हम लोग फाइंड कर रहे हैं f3, सो x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 plus 6 15 minus 15, so this will be equal to 0। इसका मतलब है कि x is equal to 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। अब अगर हम चेक करें x is equal to 1 पे, so f1 is equal to, this will be 1 का स्क्वायर, मैं इसमें पुट कर रहा हूं, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, so the value is 1 minus 5 plus 6, so 6 over 7 and 7 minus 5 is equals to 2. So x is equals to 1 is not a zero of this polynomial x square minus 5x plus 6. तो zeros of polynomial क्या होते हैं? ये x की या वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसको हम लोग कहेंगे zeros of polynomials। अब एक चीज हमको और समझनी है, और वो ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या लिख दिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। सो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 2x माइनस 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है fx, और हमको फाइंड करना है कि वो कौन सी x की वैल्यू है जिसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये 0 हो जाए। तो जरा देखिए, ये कौन सा पॉलिनोमियल? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल, यानी जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, यानी x की केवल एक ही वैल्यू होगी जिसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। अब वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? fx इज इक्वल टू 0। इट मींस कि fx की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये जो वैल्यू आई है x की, यही इस पॉलिनोमियल का 0 है। कैसे? हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम लोग x की वैल्यू पुट कर दें 2x माइनस 3 में, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 and 2 will get cancelled, 3 minus 3 will be equal to 0। तो जरा देखिए, हमने जब वैल्यू पुट की तो ये कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि x is equal to 3/2 इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 है। और कितने 0 होंगे? बस एक ही हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। तो उसमें कितनी वैल्यू जीरोस होंगे? उसमें 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें कितने जीरोस होंगे? उसमें 3, यानी x की 3 वैल्यूज होंगी जिनको क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम लोग पुट कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक एग्जांपल से समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब मान लीजिए ये है x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x प्लस 8। सो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनसे ये पॉलिनोमियल fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था स्प्लिटिंग मेथड।
तो जरा देखिए क्या करते हैं, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ को कंफ्यूजन होती है इसमें भी। तो ये जो लास्ट नंबर है कांस्टेंट, आपको पता है ना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका जो फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, ठीक है। तो इसमें जो c है यानी इसमें जो कांस्टेंट 8 है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो इसका मतलब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आएगा। 8 को दो पार्ट्स में या दो नंबर्स में स्प्लिट करना है हमको, जिससे को ऐड करने पे 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। ऐड करने पे यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड करने पे 6 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पे 6 लाना चाहिए था। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर को फाइंड करने के लिए इसके लिए हम लोग वो टेबल पढ़ेंगे जिसमें 8 आता है। सो 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो वो नंबर है 2 and 4। अब फिर कैसे हम लोग नोट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, इसी नंबर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया, एंड प्लस 8। हम लोग क्या सीख रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमको ये भी देखना है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, जीरो। इसका मतलब है कि इसके दो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिनको अगर इसमें हम पुट कर दें तो वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जरा देखिए x कॉमन लिया, यहाँ हो गया x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन लिया, हो जाएगा x प्लस 2। ना अब इन दोनों में इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस 4। तो जरा देखिए अब फैक्टराइज हो गया, हमको जीरोस फाइंड आउट करना है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 2 एंड x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। सो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे, सो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू माइनस 2, और एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 4। इसका मतलब है दो ऐसी वैल्यूज हैं x की जिनको अगर हम इस पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के। तो आई होप आपको आज का रिवीजन क्लास समझ में आया होगा, और इंट्रो क्लास है ये, क्लास 10th CBSE का। इसके आगे हम और आगे पढ़ेंगे, एंड तब तक बी सेफ एंड स्टे योर होम एंड फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन।